ये टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इट मीन्स CF। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। पहले इसका कुछ पॉइंट्स है वो लिखवा देते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, फॉलोइंग्स आर द मेन postulates followings are the main postulates of this theory. Followings are the main postulates of this theory. Main postulates of this theory. देखिए, फर्स्ट पॉइंट, there is ionic interaction between central metal and ligand in coordination compound. Next point, when ligand approaches to central metal, the electronic repulsion take place between the electron of ligand and the electron of central metal present in d orbital. Electron of central metal present in d orbital. Next point, in ground state all 5 d orbitals have equal energy. All 5 d orbitals have equal energy, and therefore they are called degenerate, degenerate degenerate d orbital. They are called degenerate d orbital. Next point, when ligand approaches to central metal, the energy of d orbital increases. The energy of d orbital increases
increases and in excited state it splits up it splits up into two set of orbitals according to their orientation orientation. Next point, the splitting of d orbital depends on the nature of the ligand as well as on the coordination number of the central metal. Next point, if the coordination number of the central metal is 4, coordination number of the central metal is 4, then the splitting is called इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, a splitting of d orbital in tetrahedral field. A splitting of d orbital in tetrahedral field. A splitting of d orbital in tetrahedral field. And if the coordination number is 6, then it is called a splitting of d orbital. In octahedral field. Next point, in the presence of weak field ligand, the energy gap between two set of orbital is small. Two set of orbital is small, while in the presence of a strong field ligand, the energy gap is large.
The energy gap is large. Energy gap is large. Next point. The arrangement of ligand. The arrangement of ligand in increasing order of their field strength, in increasing order of their field strength is called a spectrochemical series. Is called a spectrochemical series. A spectrochemical series, and it is as follows. यहाँ जो बोर्ड पर लिखे हैं इसको आप नोट कर लीजिए. H2O को अंडरलाइन किए हैं, आप भी अंडरलाइन कीजिएगा. हो गया. नोट में लिखिए अंडर द हेडिंग ऑफ नोट. देखो, इन above a spectrochemical series, the ligands up to H2O are weak filled ligand. The ligands up to H2O are weak filled ligand. अब यहां देखिए सब लोग ध्यान से समझ. आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, आयोनिक इंटरैक्शन होता है. जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, तो लिगेंड यानी जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़े कि मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज. तो दो निगेटिवली चार्ज स्पेसिस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, फिर इसी को इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहा जाता है. अब इस रिपल्सन की वजह से ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाते हैं. डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा बोर्ड पर देखना ध्यान से, सब समझ में आएगा. ये पढ़े डी सब सेल के बारे में कि डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 1 5. यहाँ इनका नाम होता है DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और लास्ट में
dz स्क्वायर। इन पांचों ऑर्बिटल का ग्राउंड सेम होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एक एक करके पहले फिल करते हैं। ये ग्राउंड स्टेट हुआ, इसे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहा जाता है। डीजेनरेट का मतलब हुआ इक्वल एनर्जी। एक जगह पर क्वेश्चन भी नजर आया है, व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट डी ऑर्बिटल? तो डी ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, यानी वो डी ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम होता है उन्हें हम लोग डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ ग्राउंड स्टेट में ये है, कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से हर एक डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा मेटल पर डिपेंड करता है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर पर। अब कहता है कि जब सेंट्रल मेटल अप्रोच करता है लिगेंड, तो अब इनका एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने के बाद में अब ये चलेगा एक्साइटेड स्टेट, 1 2 3 4 एंड 1 5, ये एक्साइटेड स्टेट। देखो यहाँ पर एनर्जी सीक्वेंस लिखे, ये एरो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे एनर्जी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ये ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी कहाँ हो गया, एक्साइटेड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट हमेशा अनस्टेबल होता है, जहां ज्यादा एनर्जी हुआ वो अनस्टेबल होगा, और इस अनस्टेबल स्टेट में यानी कि एक्साइटेड स्टेट में ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट जाता है अपने ओरिएंटेशन के अनुसार। ओरिएंटेशन जो इनके डायग्राम पर डिपेंड करता है, ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट गया। ये तीन आ जाता है dxy, dyz और dzx, और यहाँ ये आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये तीनों मिलकर एक सेट का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें T2 कहा जाता है, और ये दोनों मिलकर E का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके बीच के एनर्जी को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा आ गया। अब यहाँ लिखवाए हैं कि स्प्लिटिंग में क्या होगा, ऊपर में 3 गया, नीचे में 2 गया, ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है, तब उस कंडीशन में इनके स्प्लिटिंग को स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड कहा जाता है, या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल फील्ड। ऐसे भी ज्योमेट्री आप याद करो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, अगर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अब चूंकि T4 टेट्राहेड्रल है, इसलिए जो एनर्जी गैप आता है इसे हम लोग डेल्टा टी करते हैं। वहीं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 रहा तो 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आता है, यानी यहां कुछ ऐसे लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, 4 था तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, तो इन्हें कहा जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। सब समझ में आएगा, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देखोगे, रिपीट करेंगे हम अगेन एंड अगेन। डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या फर्क पड़ेगा, बस थोड़ा सा का फर्क पड़ेगा। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है, यहाँ और स्टार्टिंग में डी के पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा, 3 4 5। ये किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा वो किस स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, 1 2 3 4 एंड 1 5, ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में ये स्प्लिट कर जाएगा दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में। इन्हें कहा जाता है Eg और इन्हें कहा जाता है T2G, और इनके बीच के एनर्जी गैप को डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोनों को बैक टू बैक देखो, तब जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां पर देखो, अगर सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 4 है तो उस स्प्लिटिंग को कहा जाएगा टेट्राहेड्रल, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 है तब इन्हें कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दोनों में कॉमन कहां तक है, एक्साइटेड स्टेट तक, दोनों में कॉमन।
एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हुआ तो ऊपर में 3 और नीचे में 2 चलाएगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुआ तो ऊपर में 2 और नीचे में 3। यही डिफरेंस है दोनों, ठीक है। दूसरा पार्ट ये तो ऊपर में लिखवाए भी हैं, आप याद करो तो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट यही लिखवाए थे कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड, यानी कि लिगेंड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। लिगेंड के नेचर पर कहने का मतलब क्या, लिगेंड का नेचर जैसे यहाँ पर ये देखो, ये H2O तक का जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड, और H2O के बाद के जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें एनर्जी गैप वैल्यू कम होगा, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें एनर्जी गैप ज्यादा होगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर भी डिफरेंस पता चलेगा, ये कम है और यहाँ पर ये ज्यादा है। दूसरा सवाल कई बार में लगता है कि ये 2 सेट में कैसे टूट गए, dxy dz dz एक जगह पे कैसे आ गया। तो इसको समझने के लिए हम लोग को क्लास 11th में जाना पड़ेगा। क्लास 11th में डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में, एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, पी का शेप कैसा होता है, डंबल, और डी का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। उसी शेप को समझना होगा। बताए थे आपको जैसे पी के बारे में, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल था, यहाँ एस ऑर्बिटल बना दिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल था, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, एक्स वाई जेड। अगर एक्स एक्सिस पर ये डंबल आ गया तो ये कहा जाएगा पी एक्स, वाई एक्सिस पर अगर डंबल आ गया एक्स वाई जेड तो इन्हें कहा जाएगा पी वाई, और अगर जेड एक्सिस पर आ गया एक्स वाई जेड तो इन्हें क्या कहा जाएगा, पी जेड। हमें यहाँ पे डी के बारे में बात करना है। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका शेप कैसे डिपेंड करता है वो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ एक्स, ये याद करो 11th क्लास में बताए थे, डायरेक्शन को लेकर के बताए थे, डी एक्स वाई का मतलब समझाने के लिए। जैसे अगर हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर तो इसका कौन सा डायरेक्शन माना जाएगा, ईस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर है तो इन्हें कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर भी रखना है। डी एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स और वाई के बीच में, डी वाई जेड का मतलब हो गया वाई और जेड के बीच में, डी जेड एक्स का मतलब हो गया जेड और एक्स के बीच में। यानी इन तीनों में डबल डंबल है तो एक डंबल कॉमन हो, यानी इस जगह पर। दूसरा, इनके नाम के अनुसार एक्स वाई जेड इस तरीके से होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई कहने का मतलब इस एक्स और वाई के बीच में यहाँ पर। लेकिन अगर इस 3 डायमेंशनल इमेज को हम लोग 2 डायमेंशनल बोर्ड पे प्लॉट करेंगे तो लगेगा कि ये किसको ओवरलैप कर रहा है, जेड को ओवरलैप कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जेड को नहीं कर रहा है, ये एक्स और वाई के बीच में है। तो दूसरा जो डी एक्स वाई बनाना है, यहाँ और वाई बनाना है, यानी कहाँ बनेगा, वाई और जेड के बीच में। जेड एक्स बनाना है, इसका मतलब जेड और एक्स के बीच में। ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कहा जाता है अगर आप 45 डिग्री से रोटेट कर दिए तो एक डंबल चलाएगा एक्स एक्सिस पर और दूसरा डंबल चला जाएगा वाई एक्सिस पर। इन्हें कहा जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर में एक डंबल जेड एक्सिस पर एक्स वाई और जेड, और दूसरा ये डिलोकलाइड फॉर्म में होता है, इन्हें कहा जाता है डी जेड स्क्वायर। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। अब अगर इन सभी पांचों ऑर्बिटल को देखें, पी एक्स पी वाई छोड़ दो, तो इन पांचों में ये तीनों का ओरिएंटेशन एक जैसा है, एक जैसे कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो जब स्प्लिटिंग का बात आएगा तो इन पांचों में से जो एक जैसा है वो एक ग्रुप बना लेगा और जो अलग है वो एक ग्रुप बना लेगा। जैसे आप यहाँ पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, बाहर से कोई आए तो सब
लगेगा कि ये सब तो पूरा एकदम ध्यान से सुन रहा है, सब पढ़ने वाला है और सबको एकदम बराबर बराबर समझ में आ रहा है। लेकिन बताओ तो रियलिटी ऐसा है क्या? सबको बराबर बराबर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट में जब क्लास चल रहा है तो आप सब लोगों का एनर्जी बराबर दिख रहा है, लग रहा है कि ऑल आर डिजेनरेटेड। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन का टाइम आएगा तो आपका अपना ग्रुप बन जाएगा, जो पढ़ने वाला है उसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, वो पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन करेगा एग्जामिनेशन के टाइम में। जो नहीं पढ़ने वाला है उसका एक अलग ग्रुप बनेगा, उसका डिस्कशन कुछ अलग टॉपिक पर रहेगा। वो मे भी कह सकता है कि क्या लग रहा है, लेकिन लग क्या रहा है, अगला साल जो है बढ़िया से तैयारी करेंगे, चलते हैं कोटा, ठीक है। अब अगला साल जो 90% से अब बोर्ड में भी ले आएंगे और आईआईटी में फर्स्ट रैंक हम ले आते हैं, सेकंड रैंक तुम ले आना, ठीक है। और इस साल जो है अगर मान लीजिए पढ़ेंगे भी यार तो 80-85% मार्क्स आएगा तो बढ़िया तो नहीं लगेगा, ठीक है। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि सब में जो उसको 4-5 ही नंबर आने वाला है, मेहनत नहीं किया है। तो उसके अनुसार से तो डिस्कशन उस अनुसार से होगा, यानी उसका अलग डिस्कशन और दूसरे का अलग डिस्कशन हो गया। वही यहाँ पर ये स्प्लिट कर गया। तो हमें लगता है कि अब आपको समझ में आया कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स को एक साथ में क्यों रखे, क्योंकि इन तीनों का ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू अगर 4 है तो ऊपर में 3 और नीचे में 2, और अगर 6 है तो ऊपर में 2 और नीचे में 3। इस अनुसार से यह स्प्लिट करेगा, इनका यह स्प्लिटिंग आएगा। तो आप डायग्राम ये बना लीजिए। आप लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं देखिए विजिबल है या फिर और साइज बड़ा करें। बाकी का ये कंसेप्ट क्लियर होगा जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तब उस लिखवाएं क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। with the help of crystal field theory with the help of crystal field theory predict predict the magnetic behavior predict the magnetic behavior of the following complexes predict the magnetic behavior of the following complexes following complexes कौन है?
अभी चेक करो आवाज आ रहा है या नहीं। इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में COF6 में 3 माइनस में हम लोग को आइडेंटिफाई करना था इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, फिर आइडेंटिफाई करना था ये पारामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, और अगर पारामैग्नेटिक है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला काम करेंगे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, ये +3 हो गया। इसके बाद में इनका कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कन्फिग्रेशन कोबाल्ट 27 है, कोबाल्ट 3 प्लस का आर्गन 3d6 हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। यहाँ एक्साइटेड स्टेट से हम लोग चलेंगे, ग्राउंड स्टेट को छोड़ दिए क्योंकि इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आ रहा है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे पूछा कि आप ये बताओ कि यहाँ जो लिगेंड हैलोजन लगा हुआ है फ्लोरीन, ये वीक फील्ड में या स्ट्रॉन्ग फील्ड में? वीक फील्ड में। यहाँ ये लिगेंड के लिस्ट में यहाँ देखो स्टार्टिंग में लिखवाए हैं अप टू H2O, यानी कि ये सब यहाँ से लेकर के H2O तक वीक फील्ड लिगेंड, और H2O के बाद में ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो देख रहे हो सारे हैलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब के सब वीक फील्ड लिगेंड है। H2O इटसेल्फ वीक फील्ड लिगेंड, और इसके बाद वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब जब वीक फील्ड लिगेंड है ये पता चल गया, तो हम लोग यहाँ जो डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें एनर्जी गैप कम रखेंगे, यानी कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप थोड़ा सा बताना, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर में 2 होगा या 3 होगा? 2, और नीचे में 3। इसे कहा जाता है इजी, और इन्हें कहा जाएगा T2। और इनके बीच के एनर्जी गैप को डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो रहा है। अब वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो सब में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो जब तक नीचे वाला नहीं भरेगा तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। बस यही दोनों में स्ट्रॉन्ग में और वीक में फर्क है। तो अब आप बताओ ये वीक फील्ड लिगेंड था तो पांचों में इलेक्ट्रॉन डालें या पहले नीचे वाले को पेयर कर दें? पांचों में जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर 6, यानी एक पेयर हुआ। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 4 4 3 4। पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पारामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होते हैं तभी डायमैग्नेटिक होता है। ये हो गया पारामैग्नेटिक। अब म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2, यानी √4 इंटू 4+2, 4+2 6, 6 4 जा 24, यानी कि √20। ये 4.8 या 4.9 के अप्रॉक्स में आएगा। मान के चलते हैं कि 4.9 बोर मैग्नेटॉन होगा। कैलकुलेट कर लेंगे कौन सा वैल्यू आता है। ये 1 हो गया। अभी दूसरा जब तक नहीं बनाएंगे तब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपसे जो पूछेंगे आप उसी अनुसार से बताओगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स है CO NH3 अब बताइए पहला काम क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? कोबाल्ट का, यानी सेंट्रल मेटल का। क्या करेंगे? x + 0 × 6 = +3। x = कितना आ गया? +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे तो अभी हम डायरेक्ट अब अरेंज करके ही लिख दे रहे हैं। आर्गन 3d7 और 4s2। बताओ CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? आर्गन 3d6। अब इनका एनर्जी डायग्राम बनाना है। पहले आप फिर यहाँ बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कौन सा स्प्लिटिंग? कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 आया है, तो इसलिए इनके स्प्लिटिंग को हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कहेंगे। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का मतलब ऊपर में 2 या 3? ऊपर में 2 और नीचे में 3।
दूसरा ये देखना है, इस बार लिगेंड है NH3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये एनर्जी सीक्वेंस है, ग्राउंड स्टेट डी ऑर्बिटल, डी का 5 1 2 3 4 एंड 1 5, यहाँ 3d6 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब ये 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में स्प्लिट किया, ऊपर में 2 और नीचे में 3, 1 2 एंड 1 3। बताओ इस सेट को क्या कहा जाएगा? Tg। इन्हें क्या कहा जाएगा? T2। इनके बीच के एनर्जी को क्या कहेंगे? डेल्टा O। ये डेल्टा O, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज्यादा है, तो बताओ पहले नीचे वाले को पेयर्ड कर देंगे या पांचों में सिंगली फील्ड करेंगे? नीचे वाले को पेयर करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। पूरा हो गया। अब आप बताओ n का वैल्यू कितना होगा? सारे के सारे पेयर्ड हैं, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। और जब n का वैल्यू 0 है तो म्यू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0। अब दोनों को बैक टू बैक देखो, कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। डायग्राम में फर्क नजर आ रहा है? बिग फील्ड लिगेंड में एनर्जी गैप कम था, उससे क्या फर्क पड़ा? इलेक्ट्रॉन जो आसानी से एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट कर गया। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में एनर्जी गैप ज्यादा था, तो एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से जब तक नीचे फील्ड नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ में नहीं शिफ्ट करेगा। बस यही ध्यान देना है। यानी ध्यान क्या देना है? पहला कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, यानी ऊपर में 3 और नीचे में 2। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कौन सा स्प्लिटिंग? ऑक्टाहेड्रल, ऊपर में कितना? 2 और नीचे में 3। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
2.82 आ जाएगा। बनाए आप लोगों से? ये आंसर आया है? इस वाले पार्ट में किए क्या, थोड़ा सा देख लो जिन लोगों से नहीं बना वो। यहाँ ये कंपाउंड था NiCl4 2 माइनस, पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, ऑक्सीडेशन नंबर इनका +2 आया, निकेल एटॉमिक नंबर 28 है, कॉन्फ़िगरेशन 4:2 3d8, Na2 प्लस का करेंगे तो आर्गन 3d8 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। देखो एक जल्दीबाजी में गड़बड़ किए होंगे आप सब, यहाँ T2 लिखा जाएगा, T2 जी नहीं, जी लगाया जाता है ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में जी नहीं लगाया जाता। यहाँ T2 और यहाँ पर E, ऊपर में 3 और नीचे में 2, और डेल्टा O की जगह पर यहाँ पर डेल्टा T लिखा जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आए, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, और इसके अनुसार से यहाँ बाकी का ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर। ऑनलाइन में बना था आप लोगों से? हो गया? आप देखो तो नहीं, हायर एनर्जी थोड़ी फिल किए हैं तो नीचे से फिल किए हैं, यहीं से शुरू किए हैं, ये लोअर एनर्जी हो गया, ये हायर एनर्जी हो गया, तो यहाँ फिल किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है। क्लोरीन कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पांचों में पहले एनर्जी गया है। संयोग से अगर आप गलत भी बना रहे हैं तो यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए उसके बाद में भी डालोगे तो यही आएगा, लेकिन वो प्रोसेस गलत है। आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन इनर ऑर्बिटल है, कौन आउटर ऑर्बिटल है। और एक चीज, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दोनों को मिलाओ तो वहां पर बताए थे आपको कि इनर ऑर्बिटल में वो आएंगे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो देखो तो इनर ऑर्बिटल में कौन कौन सा आता था? एक NH3 था, दूसरा क्या था Cn, और तीसरा CO, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड वाले एग्जाम्पल में कौन कौन था? वहां पर एक था H2O और दूसरा क्या था? हैलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कंसेप्ट ये आया कि वो सारे लिगेंड जो वीक फील्ड के कैटेगरी में हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अगर इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम मिला दें तो हमारे पास में और भी ज्यादा ऑप्शन बढ़ जाएगा। अब आपका EDTA आ गया, NCS आ गया, ये सब के सब जो EN आ गया, ये सब किसका फॉर्मेशन करेगा? इनर ऑर्बिटल का, और ये सब किसका करेंगे? आउटर ऑर्बिटल के। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उनका ये कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ में धक्का दे देगा, अंदर की तरफ में, यानी पेयरिंग कर देगा उसको। और जो वीक फील्ड लिगेंड है जैसे ये सभी हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन को पुश करने का कैपेसिटी नहीं है, तो बाहर से वो अपना जितना खाली मिल रहा है उसके अनुसार से वो भरना शुरू कर देता है। तो ये दोनों में फर्क था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालो तो देखो तो उसमें एक क्वेश्चन था, व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो तो लिखवाए हैं क्या? हो गया है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म छूटा हुआ है वो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया। अब बाकी इसमें से जितना क्वेश्चन बनाना कंसेप्ट हमने बता दिया। पहला आप देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगर 6 तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, यानी कि ऊपर में 2 और नीचे में 3। अब याद कैसे आप रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम याद रखने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं क्या, T4 टेट्राहेड्रल एंड T4 3, यानी टेट्राहेड्रल में पहले 3 डाल देंगे, ठीक है,
ऑक्टाहेड्रल में 3 नहीं आ रहा, O है और 3 के लिए T है, तो टेट्राहेड्रल में 3 डाल देंगे तो ऑक्टाहेड्रल में कितना आ जाएगा 2। क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा, आपको लगेगा कि एक में 2 जाता है और दूसरे में 3 जाता है, टेट्राहेड्रल में 3 जाता है या ऑक्टाहेड्रल में जाता है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करके रखिए। जैसे हमने ये तरीका बताया कि हम ऐसे याद रखते हैं कि अगर टेट्राहेड्रल है तो ऊपर में 3 और एक याद रह गया तो दूसरा तो समझ में ही जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल में ऊपर में कितना आएगा 2, और बाकी क्वेश्चन बनाने पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन बनाते हैं। लिखिए टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। देखो कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having similar molecular formula and a structural formula but differ due to different rotation of plane polarized light, different rotation of plane polarized light are called optical isomers, and the phenomenon is called optical isomerism, isomerism. Next point, when a beam of monochromatic light, beam of monochromatic light is passed through polarimeter, we get plain polarized light. Next point, the chemical substance which can rotate the plane polarized light, is called optically active, while the chemical substance which cannot rotate the plane polarized light, is called optically inactive. Next point, the optically active substance
the optically active substance which rotate the plane polarized light, which rotate the plane polarized light in clockwise direction is called dextrorotatory. Dextro, D-E-X-T-R-O, is called dextrorotatory. While levorotatory, levo, L-E-V-O, while levorotatory rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction. Rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction. Next point. Both dextro and levo form of a chemical substance are non-superimposable mirror image of each other. Non-superimposable mirror image of each other. Next point. In coordination compound, only cis form, ऐसे लिखो, in coordination compound of octahedral geometry, only cis form can show optical isomerism. Because transform give superimposable mirror image. Impossible mirror image. ये इतना कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिखवा है। अब इसी को हम लोग को समझाना है, तब अगले क्लास में बाकी डायग्राम बना करके प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, उसको समझा देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी अब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।